Hello everyone, and I welcome you all to the lecture 7 of current and electricity. And this lecture is more like a problem solving part because in the previous 6 lecture we have discussed a hell lot of theory, but in this lecture we will be focusing on using all the theories which we have learned so far and the most important concept of equivalent resistance in solving different types of problems which have practical application in our daily life. We will explore different kind of circuits. We will try to find out the equivalent resistance for a mixed combination of series and parallel. We will try to find the potential across circuit elements. We will try to find current in different branches in a circuit, and we will see many practical applications in today's lecture. So this is probably the most important lecture in point of like from the point of view of examinations and problem solving. So let's go to the computer screen and let's have a look at the few problems which I have selected. लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि हमारे पास यहाँ पे है. तो इस फिगर में हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है. दैट इज आर ए बी. ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? सो बाय फर्स्ट लुक वी कैन नॉट फाइंड वेदर इट इज़ अ सीरीज सर्किट और इट्स अ पैरेलल सर्किट, राइट? देख के तो कुछ कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है. इट इज़ नॉट सीरीज और पैरेलल, but you need not to worry. If you follow whatever I am going to show you in next 5 minutes, you can solve any circuit, any complex circuit. Okay, so first rule is any complex circuit, break it up. सर्किट को नहीं फोड़ना है, सर्किट को नहीं तोड़ना है. यू हैव टू ब्रेक इट अप इन पार्ट्स, वेदर इट इज सीरीज, वेदर इट इज पैरेलल. स्मॉल पार्ट्स यू हैव टू ब्रेक इट एंड देन स्टेप वाइज यू हैव टू फाइंड फॉर एवरी पार्ट एंड देन वी विल स्मॉल मिलाते जाओ, बिग बनाते जाओ. दैट्स इट. ओके. So if I see in this portion, right, let's say this portion, this part of the circuit, correct, you can see that this resistor is connected to this resistor from end to end. It means whatever current is entering this branch, let's say I is entering this branch, is going here. I का I जा रहा है, because there is no branching between this point and this point. ओके, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट के बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है. वॉट एवर करेंट इज कमिंग इज गोइंग लाइक दिस. सो इट मीन्स दीज 15 and 15 इज इन सीरीज. दीज टू आर इन सीरीज. So what I can do, I can replace these two resistors with one resistor. Now my circuit will look like something like this. 15, this is the point, this is 30 ohm resistor. Okay, this is the 30 ohm resistor again here. Now I can remove this with the equivalent resistor of 15 plus 15, 30 ohm. Bolo, I can, between these 2 points there are two resistors which are in series, so I can replace it with another resistor that is equal to the R equivalent of these two. And हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था ना कि if we replace resistors with its equivalent there is no change in the circuit, so there is no change. Now can you see what this circuit now, that these two, this part, now this part is in parallel. Can you see? Because these two resistors are connected across same points. These two are in parallel. You can see, दिख रहा होगा आपको ये दोनों parallel में है. These two are in parallel. Now what I'm going to tell you is something which you should remember. If R and R are in parallel, if R and R are in parallel, okay, R and R are in parallel, then 1 by R effective will be what? 1 by R plus 1 by R. It makes it R effective equal to R by 2. Okay, so if two equal resistances are there in parallel, then the net resistance is half of it. Okay, similarly if three equal resistance, let's say R and R are in parallel, okay, then the equivalent will be R by 3. If R up to n times, then R equivalent will be R upon n in parallel. और in series में क्या होगा बच्चे? In parallel. Okay, just ignore that last L. It's only one L there. So if this is in series, if that is in series, then we will have what? If it is in series, then
If it is in series, then what will happen? If it is in series, then it will be NR, right? Because you have to sum R up to n times, right? So it makes it NR. Okay, now coming back to the problem. So 30, what is the R effective here? R effective is 15 ohm. Now let's see how the circuit looks like after doing this transformation. If we look at the circuit, now it is 15 ohm. This end is 30 ohm. You have to find equivalent between these two ends, and this end is 30 ka parallel equivalent, that is 15 ohm. Now again you can see that these two part, whatever current is coming, the same current is going. This is again these two part in series, so this makes it 30 ohm. Now what will be, this will be reduced to this, right? Oh, no resistance here. This will be reduced to this 30 ohm and this 15 ka sum 30 ohm. Now you can clearly see that these two are in parallel. So 30 का parallel क्या होगा बच्चे? The RAB, that is the equivalent resistance between A and B in the above circuit, is nothing but 15 ohm. So this complex circuit, you can replace it with something like this, a 15 ohm, and this point is A and this point is B. So this complex circuit is reduced to this simple circuit, and the equivalent resistance is 15 ohm. Clear? तो देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द करंट I1. हमें यहाँ पे I1 करंट निकालना है इन दिस गिवन फिगर. तो इस सर्किट में हमें I1 करंट निकालना है. तो हमने यहाँ पे एक अज्यूम कर लिया कि कैपिटल I करंट जो है वो बैटरी से निकल रहा है और वो जा रहा है यहाँ पे. तो अगर देखोगे तुम 5 ओम रजिस्टर भी सीरीज में है, क्योंकि ये सीरीज में है तो जो करंट यहाँ से आ रहा होगा I वो इधर जाएगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं. पर अब तुम इस जंक्शन को देखो, ठीक है, तो ये तीनों रजिस्टर किस में पैरेलल में है. तो यहाँ से मान लो इस वाले में I1 तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया, तो मान लो यहाँ पे I2 जा रहा होगा और इस वाले में I3 जा रहा होगा. ठीक है, तो अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ. इस जंक्शन के लिए कितना करंट आ रहा था I, तो नेट इनकमिंग करंट क्या है इस पॉइंट पे, इसको नाम दे दो A पॉइंट. तो नेट इनकमिंग करंट एट A क्या था I, जो कि इक्वल होता है किसके, नेट आउटगोइंग करंट के. आउटगोइंग करंट क्या क्या है, I1 है हमारा, प्लस I2 है और प्लस I3 है. ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमने डिस्कस किया था, चार्ज कंजर्वेशन एक तरह से, कि जो करंट यहाँ जा रहा होगा उतना ही करंट टोटल बाहर आ रहा होगा इस पॉइंट से. तो मैं ये पहला इक्वेशन लिख सकता हूँ, कोई डाउट. अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है कि मैंने आपको बताया था पैरेलल के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों के ऊपर होगा वो सेम होगा, यानी कि 10 इंटू I1 विल बी इक्वल टू 20 इंटू I2 विल बी इक्वल टू 20 इंटू I3. पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ. बोलो, ये तो ओम्स लॉ है ना. तो इन सब के बीच डिफरेंस जो है V का ही है, मान लेते हैं अगर V का ही डिफरेंस है, तो I1 इंटू 10 इज इक्वल टू I2 इंटू 20 इज इक्वल टू I3 इंटू 20. तो यहाँ से मैं ये चीज़ तो बोल सकता हूँ कि I2 और I3 बराबर होंगे. देखो ये बोल सकता हूँ, और दूसरा मैं ये बोल सकता हूँ कि I1 जो होगा 2 टाइम्स I2 का होगा. और मैंने आपको जब पैरेलल सर्किट डिस्कस किया था तब बताया भी था कि जब पैरेलल में रजिस्टर्स होते हैं, तो करंट जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के, क्योंकि वहाँ पे V सेम होता है, I इज इक्वल टू V बाई आर फ्रॉम ओम्स लॉ, और V वहाँ पे सबका सेम होता है. इसीलिए करंट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन है, 10. तो इसलिए सबसे ज़्यादा करंट इधर, क्योंकि ये दोनों का रेजिस्टेंस वैल्यू सेम है 20 और 20, इसलिए इन दोनों में करंट वैल्यू भी सेम होगा. तो अब मैं सर्किट को ऐसे रिड्रॉ कर सकता हूँ. बोलो, देखो ये 5 ओम, ये 10, ये 20 और ये भी 20.
मैं अभी कुछ इसमें रीड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। तो ये मैं बोला आई, तो मैं बोला इसको 2i बोल दिया, तो मैं इधर क्या बोलूँगा i और इधर i, है ना। और ये करंट कितना होगा हमारा, ये करंट कैपिटल I बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3। तो कैपिटल I की वैल्यू 2i प्लस i प्लस i यानी कि 4i। ये मैंने कैसे किया, ये मैंने इस तरह से किया, बहुत ही सिंपल है। i2 बराबर i3 को मैंने बोल दिया स्मॉल i, तो हमने रिजल्ट निकाल लिया था कि i1 जो होता है वो 2i2 होता है, तो i1 की वैल्यू 2i। ठीक है, तो यही यूज़ करके मेरा ये आ चुका। तो अगर मैं i की वैल्यू निकाल लूँ या 4i की वैल्यू निकाल लूँ, तो मैं i की वैल्यू और 2i की वैल्यू निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे i1 निकालना है ना, i1 हमारा 2i था, राइट ना। देखो अब हम 4i कैसे निकालेंगे या फिर कैपिटल I कैसे निकालेंगे। तो इस पूरे सर्किट को इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस कितने रजिस्टर है, अगर मैं ये दो पॉइंट की बात करूं, लेट्स से बी एंड सी, 4 रजिस्टर्स हैं, है ना। देखो 4 रजिस्टर है, अगर मैं इन सब को एक रजिस्टर में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो फिर मैं सिंपली ओम्स लॉ लगा सकता हूं, तो मैं वही करूंगा। तो देखो ये तीनों तुम्हारे पैरेलल में है, ये तीनों तुम्हारे पैरेलल में है, यानी कि 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/R इफेक्टिव। इस तीनों का, इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो वो R इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/10 प्लस 2 इंटू 1/20 यानी कि 1/10 यानी कि 1/5। तो यहाँ से R इफेक्टिव आ गया हमारा 5 ओम्स। यानी कि मैं इस सर्किट को इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। एक 5 ओम का रजिस्टर तो था ही, वो तीनों पैरेलल की जगह पे मैं सिर्फ एक 5 ओम का रजिस्टर लगा दूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा, और 10 वोल्ट्स की बैटरी। अब देखो ये दो 5 ओम किस में है, सीरीज में है, तो इनका आर इफेक्टिव कितना, इनका आर इफेक्टिव 10 ओम। तो बेसिकली सीधा एक 10 ओम का रजिस्टर लगाने का और इसको 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करने का। तो अब यहाँ से जो आई जाएगा और उस सर्किट में जो आई जा रहा होगा हमारे ओरिजिनल सर्किट में, यानी कि कैपिटल आई की वैल्यू कितनी थी 4i, वो सेम ही होगा यहाँ पे। तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी 10 वोल्ट बाई 10 ओम यानी कि 1 एम्पियर। और ये 1 एम्पियर आपका बराबर है किसके, 4i के। सो स्मॉल आई की वैल्यू कितनी 1/4 एम्पियर। और i1 क्या था हमारा, हमने अभी देखा था ऊपर में i1 वाज 2i यानी कि हाफ एम्पियर। यानी कि अब हम सबसे पहले ऊपर आते हैं क्वेश्चन पर, यानी कि इस ब्रांच में 1/2 एम्पियर करंट जा रहा होगा, और इन दोनों ब्रांच में ग्रीन कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ नीचे, इन दोनों ब्रांचेज में 1/4 एम्पियर करंट जा रहा होगा, और टोटल इस सर्किट में 1 एम्पियर करंट जा रहा होगा। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/4। देखो इन दोनों में 1/4 तो हाफ, और ऊपर से भी हाफ, तो हाफ प्लस हाफ 1। तो ये तुम्हारा वेरीफाइड है, और ये वेरीफाइड होगा ही, क्योंकि ये तो एक लॉ है किरचॉफ का, क्योंकि हमेशा सत्य होगा ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमारा अप्रोच ये होगा सॉल्व करने का, ठीक है। तो देखो अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है हमारे पास, कि ये सर्किट दी हुई है और इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो हमें इस सर्किट को कुछ इस तरह से बनाना है कि ये सर्किट फाइनली कुछ इस तरह का दिखने में हो जाए कि ए और बी के बीच में सिर्फ सिंगल रेजिस्टेंस हो और उसका वैल्यू ऐसा हो कि वो इस सारे का इक्विवेलेंट हो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से मान लो तुम करंट डालोगे सर्किट में और बी से करंट लीव करना चाहिए, क्योंकि जब तुमको इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो हम बैटरी को इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। जब तुम बैटरी कनेक्ट करोगे तो बैटरी, मान लो यहाँ पे इमेजिनरी बैटरी है, मैंने बैटरी नहीं दिया है क्वेश्चन में, बट हम ऐसे करते हैं इमेजिनरी, हम यहाँ पर एक बैटरी लगाते हैं कि सच दैट करंट यहाँ ए से एंटर करे और बी से एग्जिट करे, ठीक है। यहाँ से आई करंट एंटर करेगा और यहाँ से बी से आई करंट एग्जिट करेगा, कि सच दैट जब यहाँ पर भी तुम बैटरी लगाओ, ठीक है ना,
तो वो सेम आई करंट एंटर करे ए से और बी से सेम आई करंट एग्जिट करे। तो ऐसा ही हमारा कंडीशन होना चाहिए। तो अब इस हिसाब से देखो कि जो करंट इधर आएगी वही सेम करंट इधर जाएगी, क्योंकि ये करंट के पास और कोई रास्ता तो है नहीं ना, जो करंट यहाँ घुस रही होगी उसको तो इधर आना ही है। तो ये आर और ये आर आपका सीरीज में है, और अगर ये सीरीज में है तो इस साइड 2R हो गया, ये पूरा मिला के कितना हो गया 2R। पर अब देखो ये पॉइंट और ये पॉइंट 2R और 2R, ये ऊपर भी 2R नीचे भी 2R, ये पैरेलल में आपको दिख रहा है क्या? मुझे तो पैरेलल में दिख रहा है, मुझे तो ये तीनों पॉइंट पैरेलल में दिख रहा है। ये भी देखो, अगर मैं सर्किट को रीड्रॉ करता हूँ, देखना ज़रा ध्यान से, ए बी से कनेक्टेड है 2R से, ठीक है। अब देखो ए के पास ये जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट पैरेलल दिख रहा है तुमको, ये आर और ये आर, ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका इफेक्टिव क्या होगा? मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस ही कर देता हूँ इनके इफेक्टिव से। आर का पैरेलल यानी कि 1/r + 1/r यानी कि 2/r, और तो 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 2/r, यानी कि 1/r इफेक्टिव इज इक्वल टू 2/r। तो यहाँ से आर इफेक्टिव कितना हो गया यहाँ का आर इफेक्टिव r/2, तो r/2 से इसको मैंने रिप्लेस कर दिया। अब देखो ये पॉइंट ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट बी से कनेक्टेड है वाया आर रजिस्टर, ठीक है। फिर ये पॉइंट बी से कनेक्टेड है वाया 2R रजिस्टर, फिर ये पॉइंट इधर R और R से कनेक्टेड था जो कि सीरीज में थे, तो ये भी 2R हो गया आपका, देखो। और तुम देख सकते हो अब कि ये तीनों क्या दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है कि ये तीनों पैरेलल में है। तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, ये तीनों पैरेलल में है कि नहीं, बताओ। देखो यही 2 पॉइंट के बीच में ये 3 रजिस्टर कनेक्टेड है। अब तुमको क्यों लग रहा है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम नहीं होगा? ये तीनों पॉइंट सेम होंगे, क्योंकि यह इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई रजिस्टर है, आर कितना है 0, इन दोनों के बीच में पॉइंट में कोई रजिस्टर है, यहाँ पे ग्रीन कलर से जो मैं शो कर रहा हूँ कोई रजिस्टर नहीं है, इधर कोई रजिस्टर है नहीं है, इधर कोई रजिस्टर है नहीं है। रजिस्टर कहाँ है? रजिस्टर यहाँ है, बीच में है। तो अगर इन तीनों पॉइंट के बीच में कोई रजिस्टर नहीं है तो तीनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो सब तो सेम ही होगा ना, तो तीनों इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होंगे। मैंने आपको बताया था फ्री कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस, तो ये सब इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल है, इसका क्या मतलब है कि जो पॉइंट ये है, अगर ये पॉइंट का नाम बी है तो मैं इसको भी बी बोल सकता हूँ, इसको भी बी बोल सकता हूँ, तो ये तीनों एक ही पॉइंट है। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे फिर से रिड्रॉ कर सकता हूँ। देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए और बी के बीच में एक रजिस्टर है। देखो ए और बी अलग अलग पॉइंट इसलिए है क्योंकि इनके बीच में एक रजिस्टर है 2R का। अगर ये रजिस्टर नहीं होता तो ए और बी का पोटेंशियल सेम होता, अगर दोनों वायर से कनेक्टेड होते तो। फिर देखो यहाँ पे r/2 और ये पॉइंट का नाम दे दिया मैंने C, चलो मान लिया C दे दिया इसका नाम, तो ये हो गया C पॉइंट। अब C जो है B से 3 वायर से कनेक्टेड है, ऐसे देखो 3, समझना। इसका रेजिस्टेंस है 2R, इसका रेजिस्टेंस भी है 2R, इसका रेजिस्टेंस है R। तो ये तीनों पैरेलल में नहीं है क्या? ये तीनों पैरेलल में है दोस्त, ये तीनों पैरेलल में है। इसीलिए 1/2R + 1/2R + 1/R, जब आप इसको निकालोगे तो यहाँ से R इफेक्टिव निकल के आएगा आपका कितना, यहाँ से R इफेक्टिव आपका निकल कर आएगा R/2। तो इस तीनों ब्रांच को आप एक सिंगल रजिस्टर जिसका वैल्यू R/2 हो उससे रिप्लेस कर सकते हो। तो आपका सर्किट कैसा दिखेगा? A कनेक्टेड टू B वाया a 2R रजिस्टर। Now A is connected to point C via R/2 resistor. C is connected to B via R/2 resistor. So this is the circuit. अब आपको A और B के बीच में निकालना है, आपको A और C के बीच में नहीं निकालना, आपको A और B के बीच में निकालना था। क्वेश्चन इज फाइंड R इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में निकालना था आपको। तो ये देखो ये सीरीज दिख रहा है, ये सीरीज दिख रहा है ना, R/2 का सीरीज कितना R। तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है अब, A B कनेक्टेड टू अ 2 ओम रजिस्टर 2R रजिस्टर, और फिर ऊपर से R/2 का R। C पॉइंट खत्म हो गया, राइट। C पॉइंट बीच में है यहाँ पे।
तो ये हो गया आपका R और 2R का पैरेलल, यानी कि 2R इंटू आर बाई 2R प्लस आर, ये हो गया आपका R ए बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सो R ए बी क्या हो गया, ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R बाई 3। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये हमारे पास, कि एक सर्कुलर रजिस्टर है, ठीक है, जिसका टोटल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है और उसकी रेडियस स्मॉल r दी हुई है, और इसको हमने बैटरी के अक्रॉस ऐसे कनेक्ट किया है। देखो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसको हमने इस तरह से कनेक्ट करके रखा है कि ये जो एंगल है ना, ये सेक्टर का ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि ये 1/4 ऑफ द सर्कल है ना। तो अब हमसे पूछा गया है करंट होगा क्या सर्किट में, ठीक है। तो देखो पहले तो आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन क्या है, सीरीज है, पैरेलल है, हो क्या रहा है, पहले ये समझो। तो देखो तुम्हारे पास एक सर्कुलर वायर था, कुछ इस तरह का रहा होगा ये वायर, तो मैं इसको भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म में बना रहा हूँ। तो इसकी लेंथ कितनी होगी, इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ कितनी होगी, ताकि इससे एक सर्कल में मैं इसको ड्रॉ कर सकूँ जिसका रेडियस r हो, स्मॉल r हो, यही है। देखो ये जो सर्कल है ना, ये तुम्हारा इस फिगर में दिया हुआ है, इस सर्किल को अगर मैं कट करके ऐसे खोल दूं तो मुझे ये स्ट्रेट लाइन मिलेगा जिसका लेंथ l होगा 2πr, बोलो, और ये होगा हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, और करंट ऐसे इससे पास कर रहा होगा। तो क्योंकि ये वायर पूरा एक ही मटेरियल का बना हुआ है ना, अब बताओ ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट किसी अलग मटेरियल का है नहीं ना भाई, सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो रो तो सेम ही होगा, और रेजिस्टेंस क्या होता है, रो L अपॉन ए। तुम देख सकते हो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, रो भी सेम है, तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, R किसके प्रोपोर्शनल है, L के। 2πr लेंथ का रेजिस्टेंस है कैपिटल R, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, पर हमारे पास यहाँ पर एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, दो पार्ट है जिनका रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, इनका रेजिस्टेंस R1 है और R2 है। और ये सर्किट को आप पता है कैसे ड्रॉ कर सकते हो, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कुछ इस तरह का होगा, ये R1, ये R2, और ये दोनों कनेक्टेड है बैटरी से जिसका रेटिंग V है, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, यही है ये सर्किट। और ये सर्किट कंप्लीटली सेम है, देख सकते हो तुम, बिल्कुल सेम है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, ठीक है, और सच दैट कि ये एंगल जो तुम्हारा 90 डिग्री था, ड्राइंग थोड़ा गड़बड़ बना है यहाँ पे, बट देख सकते हो तुम कि ये सर्किट जो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये सर्किट जो मैंने बनाया ये बिल्कुल आइडेंटिकल है। तो अगर आपको R1 की वैल्यू और R2 की वैल्यू मिल जाए तो आप आराम से कर दोगे, फिर तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, R इफेक्टिव निकल जाएगा, फिर I क्या होगा, I होगा बच्चे V अपॉन R इफेक्टिव, बोलो, ये तो फट से हो जाएगा। तो बस तुम्हें R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपने ये पढ़ा होगा कि कोई सर्कल का अगर आर्क रेडियस R है और यहाँ पर सेंट्रल एंगल थीटा होता है, तो आर्क लेंथ L क्या होता है, L इज इक्वल टू R इंटू थीटा, ये होता है ना, ठीक है। और थीटा को हम यहाँ पे रेडियंस में लिखते हैं, ये तो आपको पता होना चाहिए। और तुम ऐसे भी बोल सकते हो, अगर आपको ये नहीं भी पता, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं भी पता, तो आप ये आराम से बोल सकते हैं कि सर्कल अपने सेंटर पे 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। तो ये वाला 90 डिग्री अगर बन रहा है तो ये L/4 होगा, तो ये 3L/4 होगा, क्योंकि 90 प्लस 270 इज इक्वल टू होता है 360। तो ये अगर x है तो ये 3x होगा, तो ये लेंथ 3L/4 और ये लेंथ L/4। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये R2 जो होगा हमारा यहाँ पर वो R/4 होगा। सिंपली बोल सकते हो ना कि सर्कल पूरा 360 डिग्री में R रेजिस्टेंस, तो 90 डिग्री में कितना 360/4, यानी कि R/4, और ये वाला 3R/4। एकदम आराम से मैं ये बोल सकता हूँ। या तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट करो या फिर आप इसको इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंगल के थ्रू। आप देख सकते हो L प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया,
है कि नहीं, एल प्रोपोर्शनल टू थीटा हो गया, जो कि आर तो दोनों के केस में सेम है। तो यहाँ से हमारा आ गया क्या, R1 इज इक्वल टू 3R/4 और R2 इज इक्वल टू R/4। और यहाँ से आप R इफेक्टिव जब निकालोगे तो क्या होगा, R1R2/R1 प्लस R2। तो ये आप देख सकते हो क्या हो जाएगा आपका 3R²/16/R, यानी कि 3R/16 हो जाएगी R इफेक्टिव की वैल्यू। तो करंट की वैल्यू क्या होगी, 16V/3R, 16V/3R। ये करंट हमारा इस सर्किट में फ्लो करेगा। तो ये जो I है इसकी वैल्यू 16V/3R हो जाएगा। ठीक है, क्लियर।